کریں ریڈی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ محترم ناظرین و ناظرات، پروگرام برکات اسم اعظم کے 57ویں مرحلے کے ساتھ، قسط نمبر 57 کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں مسنون طریقے پہ چلتے ہوئے آپ تمام حضرات و خواتین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میرے سفر کینیڈا اور شکاگو ورجینیا وغیرہ کی وجہ سے کوئی لگ بھگ 3 ہفتوں سے یہ پروگرام ہو نہیں سکا، تو آج میں نے ایکسیپشنلی چاہا کہ آپ کی خدمت میں پروگرام برکات اسم اعظم کیا جائے۔ اس کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے اس پروگرام کا کہ ہم سب سے پہلے تو اس ہفتے میں یا 3 ہفتوں میں ہونے والی ان برکات کا ذکر کرتے ہیں جو اسم اعظم کے ذریعے ہوئی ہوں، پھر ہم آپ کے سوالوں کے جواب بتاتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں برکات اسم اعظم کے 57ویں پروگرام میں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 718-675-6987 پہ۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 675-6987 ایریا کوڈ 718۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، ٹائپ بھی کر دیں 718-675-6987 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور آپ کی کالز کو لائیو پروگرام میں شامل کیا جائے گا۔ محترم ناظرین و ناظرات، ہمارا یہ پروگرام جو اس وقت المہدی ٹی وی سے نشر ہو رہا ہے، اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو کچھ برکات بتانا چاہتے ہیں کہ اس ہفتے میں بلکہ 2-3 ہفتوں میں کیا کیا برکات ہوئی۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ فرما لیجئے کہ اس پچھلے ہفتے میں یعنی کل مجھے ایک کال آئی، میں شکاگو ایئرپورٹ پہ تھا کہ ایک سسٹر نے مجھے کال کی۔ ان سسٹر کا بیٹا غیر فطری حرکتوں میں پڑ گیا تھا۔ ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب جی سب سے پہلے میں نے سوچا میں کال کروں آپ کو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اتنے سادہ جو ہیں لیکن بڑا کم ٹائم تھا، بڑی مہربانی آپ کی۔ صحیح اور آپ نے جو جو اسم اعظم بتائے تھے وہ الحمدللہ میں پڑھ رہا ہوں اور بس میجک کی طرح کام کر رہے ہیں۔ کام ہو رہے ہیں نا؟ جی جی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سید مجاہد حسین شاہ صاحب نے ہمیں کال کی ہے ٹورنٹو کینیڈا سے۔ ان کو میں نے وزٹ بھی کیا لاسٹ ویک، ان کی خدمت میں انہوں نے بڑی عزت افزائی بھی فرمائی۔ میں شاہ صاحب آپ کا شکر گزار بھی ہوں۔ سید صاحب اللہ کریم آپ کو عزت دے اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اسم اعظم کے صدقے میں وہ حل ہو جائیں۔ آپ شرمندہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمیں موقع نہیں ملا خدمت کا، تو آپ کی بڑی مہربانی نے آپ کی بیگم صاحبہ نے بھی بہت عمدہ کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بیگم صاحبہ کو، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی صاحبزادی کو بھی اللہ آپ کی نواسی فاطمہ کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ اللہ رزق و مال میں آپ کے بہت برکت دے۔ میں حاضرین کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ اسم اعظم جو ہے نا اس پہ بھروسہ کر کے پڑھیں تو الحمدللہ بڑے کمال کی چیز۔ بڑی مہربانی، اللہ سلامت رکھے۔ فیض میں اور اضافہ فرمائے۔ سید مجاہد حسین صاحب نے ہمیں کال کی ہے اور یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسم اعظم میں بڑی برکت ہے۔ میں نے ان کے دولت خانے پہ حاضری دی تھی اور میں نے کچھ اسم اعظم بتائے تھے تو ان کی بیگم صاحبہ اور یہ پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ میجک کی طرح، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ میجک سے بڑھ کر الحمدللہ کلام الہی کی برکت یہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ حضرات و خواتین بھی
इसमें आज़म से फ़ायदा उठाइए। सैयद साहब मैं माजरत खा हूँ, इंशाल्लाह आपकी किताबें जून में मैं पहुँचा दूँगा। नहीं शर्मिंदा न करें हजरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये सैयद मुजाहिद साहब थे टोरंटो कनाडा से, जिनसे मेरी मुलाकात पहली मरतबा हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें आज़म की बरकतों से बड़े ही इम्प्रेस हैं और तमाम भाई बहन इसमें आज़म की बरकत से मुस्तफीज हों। ये एक बेहतरीन एफर्ट है जो मैंने शुरू की है, काविश है अपने बहन भाइयों के फायदे के लिए, और इससे बड़े लोगों को फायदे हुए हैं। एक फायदा तो आपने खुद अभी लाइव प्रोग्राम में सैयद मुजाहिद हुसैन जो एज में मुझसे बहुत बड़े हैं माशाल्लाह, ये काफ़ी एज के हैं, बुजुर्ग हैं, और इन्होंने इसमें आज़म की बरकत का आपके सामने तज़किरा फरमाया है। अल्लाह करीम सैयद मुजाहिद साहब को भी जिंदा हो सलामत रखे, और हमारे तमाम ऑडियंस को, तमाम नाजरीन को बड़े अरसे के बाद आज हाजिरी हुई है। तो जो हजरात व ख़वातीन कॉल करना चाहें 718-675-6987 पर कॉल कर ले। आइए मैं आपको पहला नंबर तो बल्कि यही हो गया, मैं चाह रहा था कि आपको मैं पहली बरकत बताऊं, तो पहली बरकत तो खुद सैयद साहब ने बता दी। आइए दूसरी बरकत मैं अर्ज करता हूं। कल मैं शिकागो एयरपोर्ट से जब चला तो मुझे एयरपोर्ट पे एक कॉल आई, एक सिस्टर ने कॉल की और उन्होंने एक मोइज़े का अजीब जिक्र किया। उनका बेटा एक गैर फितरी अमल में, पर्दादारी से मैं इतना ही अर्ज कर सकता हूं क्योंकि बीबियां, बेटियां, बहनें भी प्रोग्राम देखती हैं, तो ऐसा एक गैर फितरी फेल वो अंजाम देता था कि जिसकी वजह से हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम गर्क हो गई थी, और जिसकी तरफ अमेरिका में रुझान बहुत बढ़ रहा है, बल्कि तेजी के साथ उस गैर फितरी अमल को लीगलाइज भी किया जा रहा है। जिस स्टेट में इस वक्त बैठकर मैं आपसे बात कर रहा हूं, न्यूयॉर्क स्टेट, इसमें भी इसको लीगलाइज कर दिया गया है। और जाहिर है कि जब फ्लो समंदर का ऐसा हो तो इसमें छोटे छोटे नाले, दरियाचे तो बह ही जाते हैं। तो हमारे भी जो बच्चे हैं वो नऊज़ु बिल्लाह इन चीजों में पढ़ रहे हैं। तो इन बेचारी बहन का बेटा इस गैर फितरी अमल में इन्वॉल्व था और बिल्कुल वो ठीक नहीं हो रहा था, और उन बहन ने बड़ी काविश कर ली। मुझे उन्होंने जिक्र किया, मुझे उन्होंने $1000 यतीम खाने के लिए भी भिजवाया। मैं बड़ा ममनून हूँ उनका, बल्कि सैयद साहब का भी मैं बड़ा ममनून हूँ जो मुसलसल हमारे यतीम बच्चों बच्चियों की मदद फरमा रहे हैं। उन बहन ने डायरेक्ट $1000 हमारे यतीम खाने को भेजा। मैंने उनके बच्चे के लिए इसमें आज़म पढ़ा। कल उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़का बिहम्दिल्लाह गैर फितरी अमल से तौबा करके अब शादी कर रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो गया है, नेचुरल उसकी फीलिंग्स हो गई हैं। कोई भी ऐसा मसला हो आप मुझसे राब्ता करें, मैं आपकी खिदमत करने को तैयार हूँ। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नईम बात कर रही हूँ। कैसी हैं हूर, ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैंने पूछना था 19 से 22 रजब तक इमामों पे कोई खास दिन है? बहुत अच्छे, शाबाश। हूर नईम ने हमें कॉल की है मैरीलैंड से, बल्कि हूर को भी मैंने विजिट किया है अपने सफर में। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हूर के यहाँ भी गया था और हूर को भी मैंने देखा है, विजिट करके आया हूँ। अल्लाह ताला हूर को शिफा अता फरमाए। हूर नईम ने सवाल पूछा है कि 22 रजब तक कोई खास ओकेजन है, तो बिल्कुल ये 22 रजब का जो दिन है, मंडे का जो दिन है, ये कूने हैं इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज है। आप अपने हूर जरा अपने टीवी की आवाज को कम कर लीजिए और आगा जंतरी भी यहां पहुंचा दें। जहां तक हूर नईम के सवाल का ताल्लुक है, जवाब यह है कि इन दिनों में रजब का महीना चल रहा है। मैंने रजब के आमाल आपको बताए थे बिहम्दिल्लाह, और मैंने कॉलम भी लिखा है रजब के आमाल के बारे में, और आज भी मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जरूर अर्ज करूंगा। तो जहां तक ओकेजन्स का ताल्लुक है, सबसे बड़ा जो ओकेजन है वो 22 रजब है। मफाती भी दे दीजिए। 22 रजब का जो दिन है, ये
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ईद है, यानी न्याज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। ये हाकिम शाम की मर्ग पर खुश होकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फजर के नमाजियों को मीठा खिलाया था, और उसी वक्त से हम सब शिया और सुन्नी मुसलमान इस बड़ी ईद को मनाते हैं। ये जो शख्स था इसने उम्मुल मोमिनीन को भी मारा, बीबी आयशा को, और अमीरुल मोमिनीन को भी कत्ल करवाया, हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो ये हम मुसलमानों के लिए मुश्तरका हमारा दुश्मन है, हम तमाम मुसलमानों के लिए खुशी का सामान है। इसलिए हम इस दिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज, जिसे हम अपनी ज़बान में कूंडे कहते हैं, कूंडे का मतलब ये होता है कि जिन बर्तनों में, छोटे छोटे प्यालों में इंडिया पाकिस्तान में ये न्याज बनाई जाती थी, पकाई जाती थी, रखी जाती थी, पका के रखी जाती थी, उनको कूंडे कहते हैं। तो इसलिए ये कूंडों की न्याज मशहूर हो गई है। जो लोग कुर्ब जवार में रहते हैं उन सबको हमारी तरफ से दावत है। ये जो संडे आ रहा है, यानी कल नहीं परसों, 19 रजब है आज, 21 रजब होगी परसों, तो 10 मई को 1 बजे से लेकर 6 बजे तक 5 घंटे आप हजरात व ख़वातीन को मैं मदऊ करता हूँ। अलमहदी सेंटर की तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने तमाम भाई बहनों की तरफ से जिनका ताल्लुक अलमहदी से है, हम सालाना तौर पे ये न्याज करते हैं। और इस न्याज की वजह से हम बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनका हल देखते हैं। तो ख़ास तौर पे जो मैं इस वक्त आपको दावत दे रहा हूँ अलमहदी सेंटर में, अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में 779 कोनी आइलैंड एवेन्यू पर आप तशरीफ लाएं, दर्स भी होगा, और इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह के फजल करम से हम तमाम हजरात व ख़वातीन को सर्व करेंगे। आप अपने यहाँ हूर नईम से भी कहूँगा और बाकी सबसे कहूँगा कि आप अपने यहाँ भी ये सिलसिला ज़रूर रखें। मंडे का दिन असल दिन है, अलबत्ता हम जाहिर है कि मंडे से पहले एक रोज़ कर रहे हैं क्योंकि वीकेंड भी है, और हमारी ये रस्म रही है कि हम संडे को ये ईद मनाते हैं सिर्फ वीकेंड होने की वजह से। तो ये हूर नईम के सवाल का जवाब था। 19 से लेकर 22 तक, यानी आज से लेकर 22 तक जो मखसूसी है वो यही है कि 22 को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज है, मंडे के दिन। 23 को इमाम हसन जख्मी हुए थे और 24 को फतेह खैबर हुई थी, खैबर फतह हुई थी। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए। माशाल्लाह, ये जो आपके अलमहदी से बड़े जबरदस्त जश्न सारा दिन चलते हैं, इस पे बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बड़ी मेहरबानी। और ये जो कुंडों की न्याज है, आया ये रात को ही पकाना होता है, या अगर जिस तरह मैं अकेली हूँ, अगर मैं नहीं कहीं जा सकती तो मैं खुद से मतलब दिन में बना के तो उस पे न्याज दिलवा दूँ? जी बहुत अच्छा सवाल है। बहन आबदा हुसैन ने हमें कॉल किए पेंसिल्वेनिया से। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, आपके अहले खाना को भी, आपके शौहर मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब को, आपके बच्चों को, आपके तमाम रिश्तेदारों को, और बहुत बहुत मुबारक भी हो रजब की। जहाँ तक ताल्लुक़ है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की न्याज कुंडों का, इमाम अलैहिस्सलाम ने क्योंकि शब में ये कुंडे बनाए थे, इसलिए उनकी सुन्नत में हम शब में बनाते हैं। वैसे अगर आप दिन में भी बना लें कोई इसमें कबाहत नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह करीम आपको बहन सलामत रखे, और आपकी एनकरेजमेंट का शुक्रिया। मैं ये आपको मेरे ख्याल में अगले वीक में $500
भिजवा रही हूँ। बड़ी तो मेहरबानी। अब न्याज में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आगे दिन आ रहे हैं शबान के, उसमें आप इसमें उसको शामिल कर लें। जी शुक्रिया बहन। बहन आबिदा हुसैन ने $500 की भी मेहरबानी की है। पहले भी बहन आपका एक चेक मिल गया है, एक बड़ा चेक भी आपका मिला है। एक चेक तो हमेशा आता है, एक और चेक भी बड़ा मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे। बहन आबिदा हुसैन ने $500 जश्न शाबान के लिए, मैं इनके $500 को जश्न शाबान के लिए रख लूँगा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, सरकार गाजी हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का और बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का एक जश्न हम मनाएंगे, जो टीवी पे भी नशर होगा। और वो जश्न हम मना रहे हैं 22 मई को, जुमा के दिन रात को 9 बजे ठीक। उसमें इंशाअल्लाह आपकी इस न्याज को शामिल कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके एनकरेज करने का बड़ा शुक्रिया, आप के ताउन का भी बेहद शुक्रिया। हमारे तमाम भाई बहन अगर ऐसे ही ताउन करते रहें तो अलमहदी टीवी के प्रोग्राम और इससे भी बेहतर हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर बाद इंशाअल्लाह मगरिब से पहले, रोज़े की इफ्तारी से पहले पहले मैं एक प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम का भी करूँगा, जो कि आज का ये प्रोग्राम सिरात मुस्तकीम का एक्सक्लूसिव होगा एक मुफ्ती साहब के बारे में, जिन्होंने ये फतवा दिया है कि मौला अली नऊज़ुबिल्लाह बकौल उनके काबे में पैदा नहीं हुए। तो मैं इंशाअल्लाह कुरान से और हदीस से सबूत दूंगा कि मौला अली काबे में पैदा हुए हैं थोड़ी देर के बाद। बहुत शुक्रिया बहन आबिदा हुसैन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत एनकरेजिंग कॉल थी जो बहन आबिदा हुसैन ने की है। माशाल्लाह कॉल्स का सिलसिला जारी और सारी है, आप भी कॉल कर सकते हैं 7186756987 पर आप कॉल करें। एक गुजारिश और जो मैं ज़रूरी समझता हूँ करनी, वो ये है कि एक और कॉल मुझे आई, और ये कॉल मुझे एक बहन ने ये भी कल की, कल एयरपोर्ट में मैं था तो उसी वक्त ये कॉल भी आई। उन बहन ने अपने शौहर के बारे में मुझे कहा था, कोई हदिया वगैरह नहीं दिया था, ना कोई सदका निकाला था, मगर वादा किया था कि थोड़ा बहुत सदका निकालेंगी, अल्लाह ज़ाहिर $200 का। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आपके पास ना हो तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप निकालें, अगर हो तो राह खुदा में खर्च ज़रूर करें। तो बिहम्दिल्लाह उनको मैंने एक वजीफ़ा बताया था, किसी का भी अगर ऐसा मसला हो मुझसे वजीफ़ा पूछ लें। वजीफ़े की कोई कीमत नहीं होती, कोई हदिया नहीं होता, कोई सदका आपको नहीं देना पड़ता। सदका उस वक्त होता है जब आप कोई काम करवाएं तो गरीबों को दिया जाता है ताकि रद्द बला हो। हदिया उस वक्त होता है जब टाइम कंज्यूमिंग कोई चीज़ हो, तो उस वक्त जाहिर है कि अगर 3, साढ़े 3 घंटे 4 घंटे किसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर पढ़ने वाले की ख्वाहिश होती है कि थोड़ा बहुत उन्हें मजदूरी दी जाए। और ये हुजूर के ज़माने में रस्म थी, कोई खुदा न खास्ता इसको खिलाफ शरीयत न समझे। हुजूर ने बाकायदा अपने असहाब से कहा था कि तुम जाओ दुआ पढ़ो, और उन्होंने जो बकरियां तुम्हें दी हैं वो बकरियां तुम रख लो, हदिये में जो तुम्हें दी हैं वो बकरियां तुम रख लो। अल्लाह करीम हमारे बहन भाइयों के तमाम काम बनाए। उन बहन का शौहर बिल्कुल ठीक हो गया, मैंने उनके लिए जनरल दुआ की थी, कोई खास वजीफा नहीं पढ़ा, मगर वजीफा उन्होंने खुद पढ़ा था। तमाम बहन भाइयों से कहूंगा कि आप खुद वजीफा पढ़ने की कोशिश करें, बहुत मजबूरी के आलम में आप हमें कहें, कोशिश ये करें कि खुद पढ़ें। नमाज की पाबंदी करें, कुरान की पाबंदी करें, ज़बान पर कंट्रोल रखें, गीबत से बचें, झूठ से बचें, हराम खोरी से बचें, आँख के गुनाह से बचें, फिक्र के गुनाह से बचें, किसी का दिल न तोड़ें, सिला रहमी करें, माँ बाप का एहतराम करें, छोटों पे शफकत करें, सबके साथ प्यार मोहब्बत से बोले, तब जाकर आपके वजीफे का, किए हुए वजीफे का असर होता है। आज एक साहब यहाँ बड़े गुस्से में आ गए थे, मेरे पास आए थे, वो बेचारे पाकिस्तान से आए हैं, और 1 मिनट में वो चाहते थे मैं उनको लेटर दे दूं, और वो गुस्से में आके वो बाहर जाने लगे। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ज़रा मेंटेलिटी अपनी चेंज कीजिए, अपने आप को ज़रा तब्दील कीजिए। अब आप प्रैक्टिसिंग मुल्क में आ गए हैं, अब तानो तशनी वाले मुल्क में नहीं है। यहाँ पर तो मेहनत करेंगे तो आप कमाएंगे। तमाम भाई बहनों से कहूँगा कि सिर्फ दुआओं पे बैठे न रहें, मेहनत भी करें। मैं खुद भी मेहनत करता हूँ, आपके सामने मैं 2-2, 3-3 हफ्ते आपकी खिदमत में नहीं आ पाया हूँ। कुछ उसमें मजहबी खिदमत थी, कुछ उसमें मेरी मजदूरी भी शामिल थी। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद तारिक जावेद बात कर रहा हूँ, क्या नाम? जी खैरियत से हैं सर? जश्न अली पाक मुबारक हो। बड़ी मेहरबानी। बहुत बहुत
डॉक्टर साहब मौका दे तो मैंने वो एक कुछ अशआर पढ़ने हैं उसके बलगल लादी कमाले की। पढ़िए पढ़े, बिल्कुल इजाजत है, पढ़े। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही हसन जमीउ खिसालिही कशफ तुजा बिजमालिही सल्लू अलैहि व आलिही। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। माशाअल्लाह डॉक्टर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाकुमुल्लाह। थैंक यू। ये थे मोहम्मद तारिक जावेद साहब, जिन्होंने हमें मैरीलैंड से कॉल की है। ये भी हमारे बड़े सपोर्टर हैं, हमारे यतीम खाने के भी सपोर्टर हैं। अल्लाह करीम इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने ताज़ा ही एक कंपनी भी खोली है। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है रजब के पाक महीने और रजब के मौलूदीन ताहिरीन की वजह से और रजब के मखसूस अयाम की वजह से, रजब के दिनों और रातों की इबादत के सदक़े में, रोज़ों के सदक़े में मोहम्मद तारिक जावेद के रिज़्क़ व माल में अल्लाह बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह कॉल्स का सिलसिला जारी और सारी है। इन्होंने बलगल ओला के अशार पढ़े अरबी में, बहुत हम शुक्रगुजार हैं इनकी इंटरेस्ट के। आज का प्रोग्राम हमारा बरक़ात इसमें आज़म नंबर 57 है और इसमें हम आपकी खिदमत में कुछ वो मारूज़ात पेश कर रहे हैं जो चंद हफ्तों में हमने मौजज़ात देखे हैं अल्लाह के पाक नामों के। एक और मौजज़ा ये भी है कि आज बिहम्दिल्लाह आज रात को हमारी किताब सखावतुल्लाह 100% जो मुकदमा उसका बाकी था वो आज रात को मुकम्मल हो जाएगा। मैंने कुछ सफ़ात लास्ट नाइट और आज सुबह लिखे थे रोज़ा रखने के बाद, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज रात को उस किताब के मुकदमे को भेज दूंगा। बाकी किताब मुकम्मल है, 786 सफ़ात की ये किताब है सखावतुल्लाह। इसमें बड़े ज़बरदस्त वज़ाइफ हैं। कल रात को मैं देख रहा था, ये किताब जल्द आने वाली है इंशाअल्लाह अज़ीज़। 13 से 15 जून तक ये किताब आपको भेजी जा सकेगी। किताब का हदिया $40 है और इसकी प्रिंटिंग बहुत अच्छी करवा रहा हूँ और इसको किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। ये मैं खुद अपनी हक हलाल की कमाई से मेहनत मजदूरी करके इस किताब को मैं छपवा रहा हूँ। लिहाजा मैं तमाम उन भाइयों से गुजारिश करूंगा जो मुफ्त में ये किताबें लेते हैं कि कम से कम सखावतुल्लाह को मुफ्त न लीजिए, इसलिए कि बहुत मुश्किल से मैंने मजदूरी करके कई महीने और इस किताब का छपवाने का हदिया तैयार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इसमें इंटरेस्ट लें, अल्लाह करीम आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। और भी बहुत सारे मौजज़ात हैं। एक मौजज़ा ये है कि मैंने अभी इस मंडे को, ये जो मंडे गुजरा, एक बच्ची से जिन का दफ़इया किया है, जिन निकाला है, जो इस बच्ची को 15 साल से तंग कर रहा था। इस बच्ची की उम्र टोटल 16 साल है, यानी 1 साल की बच्ची थी तो इस बेचारी को जिन ने तंग किया था और बिहम्दिल्लाह वो जिन भाग गया है। अल्लाह के फजल करम से मैंने तसल्ली की, पेरेंट्स से मैंने 2 दिन पूछा, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी, बल्कि थर्सडे को भी। अल्लाह के फजल करम से वो जिन भाग गया है। किसी को भी कोई जिन का मसला हो, ये एक सिस्टर है, हमारी बहन है, इनका ताल्लुक अटक से है, ये हमेशा हमें कॉल फरमाती रहती हैं। इनके लिए भी हमने वजीफा किया था और बिहम्दिल्लाह इनके जादू के असरात पाकिस्तान में थी तो हमने ख़त्म किए थे। ये भी आपसे बात करेंगी, उनसे पहले एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, कैसे? हाँ जी डॉक्टर, मैं इमरान मजीद कर रहा हूँ, मुखलिस जाने वाला जी। कैसे मिजाज है? खैरियत से इमरान? ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्र अदा करना है। आप टोरंटो में आए और इतने अच्छे अंदाज से आपने और खास तौर पे वालिद गिरामी सरकार मुतालिब इस्लाम की जो आपने नए और एक्सपीरियंस बयान किए हैं, हमने पहले नहीं सुनी। बहुत बड़े मशहूर है, हमारे दिल को सुकून मिलता है जब आप मौला मुश्किल शाह अली के पापा के बारे में हमें बताते हैं तो हमें बड़ी उसकी खुशी और मसरत होती है। तो आप ये अपना मिशन जारी रखते हैं सरकार मुतालिब, तो उनकी कितनी बड़ी फजीलत है, रस्मत है और लोगों ने उनके मकाम को बहुत कम समझा बल्कि गिराया है। तो आप
ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے آپ ان کو ان کے فضائل، ان کے مناظر، ان کی جو خصوصیات ہیں، بہت مہربانی، بہت اچھے شکریہ. پہلو ہیں رحمت العالمین کے مناظر سے، امام علی کے مناظر سے، اسلام کے حوالے سے ہمیں بتاتے رہا کریں، ہم بڑے مشغول ہیں. بڑی مہربانی. عمران مہدی نے ہمیں کال کی ہے ٹورنٹو کینیڈا سے، بہت ہم شکر گزار ہیں، اور انہوں نے جشن کا بھی ذکر کیا. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سر، میں سے ہمارا بات کر رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی سر، آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا کہ 80% میری صحت میں کافی فرق ہوا ہے. آپ کی دعاؤں سے، آپ نے جو بھی دعائیں میرے لیے کی ہیں، شکریہ. مجھے بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے. اور باقی بھی جو میرے مسئلے ہیں انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ بھی سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ. حمیرہ نے ہمیں کال کی ہے میری لینڈ سے، اور ہم شکر گزار ہیں. اللہ کریم ان کو صحت دے اور ان کے تمام مسائل حل کرے. یہ کہتی ہیں کہ 80% مسائل ان کے حل ہو گئے ہیں دعا کی وجہ سے. میں نے ان کے لیے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی باقی ماندہ جو مشکلات ہیں 20% بھی وہ بھی حل فرمائے. دعا گو ہوں محمد و آل محمد کے طفیل میں، قرآن و اہل بیت کے صدقے میں، رجب کے مہینے کی برکتوں کے صدقے میں، مولا کائنات کے صدقے میں انشاءاللہ خدا ان کے مسائل کو حل فرمائے گا. ایک سسٹر ہیں جن کا تعلق، نام تو مجھے معلوم نہیں ہے ان کا، اس وقت ڈائری میں کہیں نام ان کا لکھا ہوا ہے. یہ میرے سیل فون پہ کال کر رہی ہیں، اور یہ وہ بہن ہے کہ جو ہمیشہ ہمیں کال کرتی تھی اٹک سے. تو ان کا ایک کام تھا بہت بڑا، ان پر کسی نے جادو کر دیا تھا. بحمداللہ ان کے ہسبینڈ جن کا نام تاج حسین ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، خود بھی یہ ٹھیک ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر رحم فرما دیا ہے. کسی کو بھی جادو کا مسئلہ ہو، جن کا مسئلہ ہو، ابھی جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ 15 سال پرانا جن بحمداللہ نکل گیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں نے 40 منٹ کی پڑھائی کی تھی. آپ چاہیں تو وہ پڑھائی مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. میں نے وہ پڑھائی اپنی کتابوں میں بھی لکھی ہے. ابھی میری جو کتاب آ رہی ہے سخاوت اللہ، اس میں جن نکالنے کے طریقے بھی موجود ہیں، شیطان کے دفع کرنے کے طریقے بھی موجود ہیں. آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. محترم ناظرین و ناظرات، آج بلکہ ایک اور اعلان بھی کرنا ہے کہ حج 2015 کے لیے ایک بہترین پیکج ہمیں مل گیا ہے. تو اگرچہ میں نے تو یہ عہد کیا تھا کہ میں قافلہ نہیں لے جاؤں گا، ابھی بھی خیر میں تو نہیں لے جاؤں گا، مگر یہ ہے کہ میں اپنے حاجی بھائی بہنوں کی مدد کروں گا. تو آپ کے اگر کوئی رشتہ دار جانا چاہتے ہوں تو فوراً مجھ سے رابطہ کر لیں. حج کا پیکج کل فائنلائز ہو گیا ہے، اور بہترین پیکج ہمیں ملا ہے. حرم کے ساتھ بالکل رہائش ہے 5 سٹار ہوٹلز میں، کنفرم سیٹس ہیں، اور ویزوں کا ارینج آلریڈی ہو چکا ہے. محترم ناظرین و ناظرات، ہمارا پروگرام ابھی جلدی اختتام پذیر ہو جائے گا. آج کا ہمارا پروگرام جو برکات اسم اعظم نمبر 57 تھا، یہ بہت ہی کامیاب رہا. آپ کو ہم نے کچھ واقعات بتائے، جو فوائد ہوئے ہیں وہ بتائے ہیں. ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مولانا، آپ کو 13 رجب 14/15 مبارک ہو. آپ کو بہت مبارک ہو. آپ میں ملکہ بات کر جی جی بہت مبارک ہو. ایک تو بات یہ بولنا ہے مولانا، شعبان 15 شعبان کے جشن کے لیے میں انشاءاللہ $100 بھی جاؤں گی آپ کے پاس، آپ اس میں شریک کر رہے ہیں انشاءاللہ 15 شعبان. اور ایک دوسری بات یہ ہے مولانا، وہ اسم اعظم اگر آپ خود پڑھے تو میں عطیہ دینے تیار ہوں. اس سے پہلے بھی بولی تھی. علی اصغر نام ہے بچے کا، علی اصغر موسوی. وہ جن کو آٹزم ہے نا، آٹزم. جی ہاں، بات کرنے کا ہے، بات جی آٹزم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں ضرور پڑھوں گا. میں بالکل حاضر ہوں. میں انشاءاللہ آج کل میرے پاس ٹائم ہے، روزے بھی چل رہے ہیں، تو میں پڑھوں گا، بالکل پڑھوں گا. آپ مجھے بعد میں ان کی والدہ کا اور والد کا نام بتا دیجیے گا علی اصغر کا. میں ابھی دے دے تم بولے تو. اچھا دے دیجیے، دے دیجیے. فاطمہ موسوی ٹھیک ماں کا، اور باپ کا شکیب موسوی. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ پڑھوں گا. آپ سے وعدہ کرتا ہوں. ماں کو بھی کچھ پڑھنا ہے تو آپ بولیے، میں ان کو بھی. جی ٹھیک ہے، میں آپ کو کال کر لوں گا. انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا. آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں پڑھوں گا، اور اللہ کے حکم سے یہ شفایاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک بات یہ ہے مولانا، میری ایک فرینڈ کو بولی آپ کے ممبر بننے، تو ان کا نام نجمہ مرزا ہے، اور میں سے
आपके पास दी जाएंगे। मैं कल उनके पास आपका एड्रेस लिखा दूंगी। तो नजमा मिर्जा है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जो मेरी दोस्त है जी ठीक है, बोलने से उन्होंने शरीक। बहुत मेहरबानी। मलिका आपा मूसवी ने हमें कॉल की है न्यू जर्सी से, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। कल इंशाल्लाह बैतुल कायम में भी याद रखिएगा, कल इंशाल्लाह बैतुल कायम में हाजिरी हो रही है 4 बजे। जो लोग बैतुल कायम के करीब रहते हैं वो न्यू जर्सी डेलरान में कल सैयद शाहिद अख्तस काज़मी की बरसी की मजलिस है, आप उसमें जरूर शरीक होइएगा 4 बजे इंशाल्लाह। ये जो नशरियात आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, इनको हसन चट्ठा जो नज़ीर चट्ठा के बेटे हैं, गुलाम रसूल, हाजी गुलाम रसूल चट्ठा के पोते हैं, ये पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हसन चट्ठा की तौफीकात में इजाफा फरमाए। और हमारे शागिर्द मुबश्शिर हैं, मुबश्शिर नज़ीर, वो भी आने वाले हैं अल्लाह ज़ाहिर आज, तो इंशाल्लाह वो भी अब ज्वाइन कर लेंगे। वो भी माशाल्लाह बहुत खिदमत यहाँ करते रहे हैं। अल्लाह ताला मुबश्शिर नज़ीर को सलामत रखे, इनकी बखैरियत वापसी हो गई है पाकिस्तान से। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, इन नशरियात के भेजने में हमारे आगा सैयद सजाद अली शाह जाफरी ने भी बड़ी मेहरबानी की है। ये कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स थी तो इन्होंने उसमें बड़ी मदद की है। और आज मेरी इफ्तारी का भी ख़ास तौर पे शाह साहब ने एहतमाम किया है, सैयद सजाद अली शाह जाफरी ने। अल्लाह ताला इस इफ्तारी के एवज़ इनके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए और हमारे तमाम भाई बहनों को रजब के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ खैर मत फरमाए। आज मैं महफ़िल शाह खुरसान गया हुआ था, जुमा मैंने वहाँ पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी मोमिनीन में अलमहदी टीवी के बारे में काफ़ी पॉजिटिव असरात थे। अभी आपने देखा कि मलिका आपा मूसवी के ज़रिए नजमा मिर्ज़ा ने भी मेंबरशिप ली है। तो मैं ये कहने में हक़ बजानिब हूँ कि अगरचे इतनी ज़्यादा तो हौसला अफजा मेंबरशिप नहीं, मगर इतना ज़रूर है कि बिहम्दिल्लाह 1-2 महीनों से कुछ डोनेशन हमारे पास आना शुरू हो गया है और मेरा प्रेशर कुछ कम हुआ है। मैं इस मामले में बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तमाम मैं भाई बहनों से कहूँगा कि तमाम शियाने अली, तमाम मुहिब्बाने अहले बैत, हत्ता कि अहले सुन्नत भी अगर $1 पर डे इमाम महदी अलैहिस्सलाम के नाम पर चलने वाले टीवी को दे दे तो $1 से कुछ नहीं होगा। $1 की तो कॉफ़ी भी नहीं आती, अब तो कॉफ़ी भी $1.45 की हो गई है डंकिन डोनट के ऊपर, और बाकी जो कॉफ़ी है वो तो और महंगी है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, $1 कुछ नहीं, सदका जारिया आज से ही अहद कीजिए। तो अगर हमें 100 बंदे मिल जाते $1 डेली वाले तो हम बड़े मसाइल हमारे हल हो सकते थे, मगर बदकिस्मती से अभी तक हमारे पास शायद 20 मेंबर या 25 मेंबर भी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने इस टीवी की मदद फरमाएं, अल्लाह करीम आपको इज्जत दे। बहुत शुक्रगुजार हूँ आज कॉल करने वाले बहन भाइयों का। सबसे पहले तो सैयद मुजाहिद साहब ने कॉल की, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ टोरंटो से। उसके बाद हूर नईम ने कॉल की, बहन आबदा हुसैन ने कॉल की, मोहम्मद तारिक जावेद ने कॉल की, इमरान मेहदी ने कॉल की, हुमैरा सईद ने कॉल की, और आखिरी कॉल जो थी वो मलिका आपा मूसवी की थी। अल्लाह करीम इनके शौहर को जवारे अहले बैत में जगह अता फरमाए और इनके अहले खाना को जिंदा हो सलामत रखे। ज़की मूसवी जो इनके शौहर थे हमारे बड़े भाइयों की तरह थे, बड़े नेक थे। अल्लाह करीम उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और इनकी बच्चियों को, इनके दामादों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को जिंदा और सलामत रखे। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने वाला है। एक कॉल और मैं लूँगा, एक कॉल के बाद इंशाअल्लाह हम ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर कर रहे हैं। आज ये प्रोग्राम था बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम नंबर 57 और इसमें हमने आपकी खिदमत में कुछ वो मोजज़ात, करामात, बरक़ात बयान की जो ये 3 हफ्तों में हुई, क्योंकि ये 3 हफ्तों के बाद प्रोग्राम हो रहा है। 3 हफ्ते प्रोग्राम नहीं हो सका मेरे सफ़र की वजह से, इस पर मैं माजरत खा भी हूँ। और जिन बहन भाइयों ने एनकरेजमेंट की है उनका मैं बेहद शुक्रगुजार भी हूँ। मुझे उम्मीद है कि 22 रजब की कुंडों की ईद में अल्लाह ताला आपको ईदी देगा, आपकी मुश्किलात हल होंगी। और 23 को इमाम हसन जख्मी हुए, वो ज़रा गम की तारीख है, और 24 को फतेह खैबर है, और 25 को फिर गम की तारीफ है, बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत है, और 26 को
حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات اور شب میں شب معراج ہے۔ 27 کا جو دن ہے وہ بیست کا دن ہے اور 28 کا دن سفر امام حسین کا دن ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر سفر امام حسین کی مجلس ہوگی سیٹرڈے کو، اگلا جو سیٹرڈے ہے، ایک تو کل ہے، کل تو بیت القائم میں جائیں گے، پرسوں مرزا فیملی کے زیر اہتمام القرآن سنٹر میں جشن مولود کعبہ ہے، کل 4 بجے ہے، پرسوں 8 بجے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہمارا پروگرام ہے وہ یوں ہے کہ جمعہ کے دن مغرب سے پہلے مجلس ہوگی باب الحوائج کی زینبیہ ارونگٹن، اور شب میں وہاں نیاز ہے، معراج کا جشن بھی ہے زینبیہ ارونگٹن۔ ہفتے کے دن جو حسینی مدرسہ ہے خوجوں کا امام بارگاہ ہے ہمارے بھائی بہنوں کا، وہاں پر ہم کوئنز بلوارڈ کے اوپر ہے یہ، خطاب کریں گے، وہاں انشاءاللہ 7 بجے خطاب ہوگا، مغرب سے پہلے افطار بھی وہیں ہوگا۔ بڑا روزہ ہے سیٹرڈے کا، اگلے سیٹرڈے کا، اسے ضرور رکھیے گا۔ بیست کا دن ہے، 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ شب معراج کے اعمال بھی ہیں، وہ بھی آپ کیجئے گا، انشاءاللہ المہدی ٹی وی سے بھی اعمال کروائے جائیں گے۔ اور 28 کی جو مجلس ہے جیسے عرض کیا ہے وہ یہاں پر جو ہوگی سیٹرڈے کو ایوننگ میں 9 o'clock انشاءاللہ المہدی سینٹر میں ہوگی، اور ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک مجلس، بڑی مجلس سالانہ ہوتی ہے انجمن گلستان زہرہ کے زیر اہتمام، اور وہ مجلس ہوتی ہے امام مہدی ایجوکیشن سنٹر، پارک ول نیئر بالٹیمور میری لینڈ میں۔ سید قلب حسین شاہ کرتے ہیں، وہ جمعرات کو ہے، جو جمعرات آ رہی ہے 14 کو، اور 15 کو زینبیہ میں، 16 کو حسینی مدرسہ میں اور المہدی سینٹر میں ہے۔ یہ آپ ذرا نوٹ فرما لیجئے۔ اور 17 کے دن ہمارا روٹین کا مدرسہ، اسکول اور درس قرآن انشاءاللہ ہوگا، اس میں بھی آپ ضرور تشریف لائیں۔ اور ایک اور مجلس بدھ کے دن، اگلے بدھ کو انشاءاللہ، یہ جو آ رہا ہے بدھ 13 تاریخ کو، 13 مئی کو شعیب آبادی کے گھر ہوگی، تو اس میں بھی آپ شرکت فرمائیں۔ اسی کے ساتھ آپ کا یہ ہوسٹ سخاوت حسین سنرالوی برکات اسم اعظم کے پروگرام نمبر 57 سے آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضری ہوگی، تھوڑی ہی دیر کے بعد صراط مستقیم کے ساتھ میں پھر حاضر ہو رہا ہوں، افطار سے پہلے چند منٹ کے لیے۔ جو ایک مفتی نعیم ہے، انہوں نے ایک پروگرام کیا ہے جس میں مولا علی کی توہین کی ہے، اس کا میں جواب دوں گا۔ ڈو ناٹ گو اوے، جسٹ ویٹ فار 5 minutes۔ خدا حافظ۔